students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2 of your class 5 English grammar, that is types of sentence. There are 3 types of sentence. So simple sentence, compound sentence and complex sentence. First we will talk about what is sentence. A sentence is a group of words which are arranged in a proper order, in a particular order, to convey a complete sense and a clear meaning. जो एक complete sense दिखाते हैं और एक clear meaning दिखाते हैं, एक order में fixed होते हैं. There are 3 main types of sentence. First, simple sentence, complex sentence and compound sentence. So, simple sentence क्या होते हैं? A sentence which contains only one clause, जिसमें एक ही clause होता है, उनको क्या कहते हैं? हम simple sentence कहते हैं. A simple sentence consists of just one main clause. एग्जाम्पल हो गया आपका, द मैन वर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम. मैन क्या ही कंस्ट्रक्ट कर रहे थे? डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे. हियर देयर इज द वन क्लॉज इन ईट. द युवांश इज फैट. युवांश कैसा है? फैट है. ईच ऑफ द अबव सेंटेंस हैज वन मेन क्लॉज. में एक ही मेन क्लॉज है. देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. द मैन एंड वर कंस्ट्रक्टिंग अ डैम आपका प्रेडिकेट हो गया, युवांश आपका सब्जेक्ट हो गया, इस साइड आपका प्रेडिकेट हो गया. सो इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड सेंटेंस. अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन प्रिंसिपल क्लॉज. इसमें एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन प्रिंसिपल क्लॉज. एग्जांपल, युवांश इज फैट and Tarun is thin. युवांश फैट है और तरुण कैसा है? थिन है. फैट है, थिन आ गया आपका. The above sentence there are two main. युवांश is fat and Tarun is thin. यहाँ पे two main clause हो गए. The conjunction आपका जो and है, joins the two clause. उसने दो clause को join कर दिया. Each of which makes complete sense by itself. जो खुद से complete sense बनाते हैं. Such clauses are called coordinate clause. Clauses को क्या कहते हैं? हम coordinate clause कहते हैं. Now, the word coordinate means equal in importance or rank. जो equal होता है, important जो एक दूसरे से coordinate करते हैं, importance और rank में होता है. Compound sentence consists of two coordinate clause is called double sentence. उसको क्या कहते हैं? Double sentence कहते हैं. A compound sentence consists of more than one two coordinate clause is called a multiple sentence. जिसमें एक से दो से ज्यादा क्लॉज होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको मल्टीपल क्लॉज सेंटेंस कहते हैं. हियर एग्जांपल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. हियर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया. सेकंड क्या हो गया आपका लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, बट they are not as big as New York. तो यहाँ का थर्ड आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो this is multiple sentence and this is double sentence. Now let's talk about complex sentence. Complex sentence, the word say complex है. A sentence which consists of one main clause and one or more subordinate clause. जिसमें एक main clause होता है और इससे ज्यादा subordinate clause होता है, उसको क्या कहते हैं? हम complex sentence कहते हैं. Subordinate clause क्या होता है? Has a subject and a verb, but it cannot stand alone as a complete sentence. उसमें subject भी होता है, verb भी होता है, but अपने आप एक पूरा sentence की तरह stand नहीं चल सकता. Like a complex sentence consists of more than one clause. इसमें एक से ज़्यादा clause होते हैं. Example, the man was constructing a dam. Man क्या construct कर रहे थे? Dam construct कर रहे थे. Which would produce electricity. वो क्या produce करेंगे? Electricity produce करेंगे. The above sentence consists of two clauses. Above sentence में क्या? दो clause है. The man was constructing a dam and which would produce electricity. दो clause आ गए आपके. We observe that clause one makes a complete sentence by itself. वो खुद से complete sentence बना, but B does not. B में clause ही नहीं है. B does not tell us more than above noun dam. वो किसके बारे में बता रहा है? Dam के बारे में बता रहा है. And so depends on clause one. Clause A पे डिपेंड कर रहा है वो, to make sense. Here
वी कॉल क्लॉज ए द मेन, इसको मेन कहेंगे और मेन प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और क्लॉज बी को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है अपने आप को साइन करने के लिए। सो इज अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं मी वाले को। व्हाट डिपेंडेंट मींस समथिंग विच डिपेंड्स ऑन समथिंग अनदर थिंग। फर्स्ट, नाउ सेकंड, युवांश हु इज तरुण फ्रेंड इज फेड। जो युवांश किसका फ्रेंड, तरुण का फ्रेंड है, तो तरुण के आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है अपने आप को बताने के लिए। तो above sentence consists of two clause. युवांश is fat. Who is Tarun's friend? तो किसका फ्रेंड है, तरुण का फ्रेंड है। Clause A is the main principal clause. Clause A आपका main principal clause है और clause B किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट वाले पे। B is the dependent or subordinate clause. B आपका dependent और subordinate clause है। Here, third, युवांश who is Tarun's friend fell into ditch. किसमें फेल हो गया, डिच में, which was full of mud. किससे फुल था, वो मड से फुल था। द above sentence has three clause, इसमें three clause आ गए। जैसे युवांश fell into ditch, who is Tarun's friend, which was full of mud. Now, clause A makes complete sense by itself. वो खुद से complete sense बना है, but B वाला नहीं बना रहा। None of the clause B or C makes complete sense by itself. So clause A क्या आपका मेन प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी की क्या आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए बी और सी। नाउ समटाइम्स आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं, एंड वन और मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सुजाता हु इज माई फ्रेंड, सुजाता जो मेरी फ्रेंड है, lives in Kolkata, and John, who is also a friend of mine, lives in Mumbai. जो मेरा भी फ्रेंड है वो कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। Here the word sentence consists of four clauses, में four clause आ गए, एक दो तीन चार। Now सुजाता lives in Kolkata, आपका फर्स्ट आ गया। Who is my friend, सेकेंड। John lives in Mumbai, थर्ड। Who is also my friend, वो भी फोर्थ हो गया। सब्जेक्ट क्या आपका सुजाता है, हु भी सब्जेक्ट है आपका, जॉन भी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हु फिर से सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट क्या है, लिव्स इन कोलकाता इज माय फ्रेंड, लिव्स इन मुंबई इज आल्सो माय फ्रेंड। ये क्या हो गए आपके प्रेडिकेट हो गए। नाउ ईच ऑफ द क्लॉज ए एंड सी मेक्स कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। ए और सी आपको खुद से ही कंप्लीट सेंस बना रहा है, बट नन ऑफ द क्लॉज बी और डी आपको खुद से नहीं बना रहे कंप्लीट सेंस। तो किस पे डिपेंड करता है, ए और सी पे डिपेंड कर रहे हैं अपने कोऑर्डिनेट क्लॉज पे। सो क्लॉज ए एंड सी आर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड क्लॉज बी और डी क्या है आपके, बी और डी आपके सब आपका ए और सी कोऑर्डिनेट क्लॉज और बी और डी आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.